آج آپ کی خدمت میں مثنوی سحر البیان پر بات کریں گے۔ مثنوی سحر البیان کو پہلے تو ہم سب مثنوی چاروں مثنویوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں جو مثنویاں سلیبس میں شامل ہے۔ سحر البیان جو ہے یہ میر حسن کی ہے۔ میر حسن مثنوی سحر البیان، جس مثنوی کے معنی ہیں بیان کا جادو، یہ مثنوی 1784 میں 1784 میں آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی۔ مثنوی سحر البیان 1784 میں آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی۔ مثنوی کے آخری میں قطع بھی ہے، آخری میں قطع یہ ہے جس سے اس مثنوی کی 1199 ہیں، اس مثنوی کی تاریخ آتی ہے۔ اس طرح سے ہے: سنی جب کہ ماہر نے یہ مثنوی، تو محفوظ ہو کے فکر تاریخ کی، یہ مصرع پڑھا وہیں پا کر فرح، ہے اس مثنوی کی یہ نادر طرح۔ 1199 میں عموماً آتا ہے کہ مثنوی کی تاریخ کیا ہے، 1199 ہجری بتایا جاتا ہے۔ مثنوی سحر البیان جو ہے یہ بحر متقارب مسمن مقصور یا محذوف میں ہے، متقارب میں ہے، متقارب، جس کا یہ ہے فعول فعول فعول، اس طرح سے ہے۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کی آخری اور تبازان مثنوی ہے۔ سحر البیان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر شیر علی افسوس نے مقدمے کے ساتھ 1805 میں ہندوستان پریس کلکتہ سے چھپی تھی۔ مثنوی سحر البیان کو رشید حسین خان نے مرتب کیا۔ اتنا یاد رکھیں، رشید حسین خان نے ساری مثنویوں کو مرتب کیا، چاروں مثنویوں کو، جو مثنوی سحر البیان ہے اور گلزار نسیم ہے اور مرزا شوق کی جو لکھنوی کی جو مثنوی ہے، ان کو بھی رشید حسین خان نے مرتب دیا۔ مثنوی سحر البیان کو مثنوی میر حسن، مثنوی بدر منیر، قصہ بدر منیر یا شہزادہ بے نظیر وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی عشق کی داستان بیان ہوئی ہے۔ مثنوی سحر البیان کے دیباچے میں میر شیر علی افسوس نے اسے اسم با مسمى مثنوی کہا ہے۔ سحر البیان میں کہا اسم با مسمى، کس نے کہا؟ شیر علی افسوس نے کہا۔ مثنوی سحر البیان میں اس عہد کی تصویر کشی کی گئی ہے، معاشرے کی تصویر کشی کی گئی ہے، اس عہد کی۔ سحر البیان کو لکھ کر میر حسن نے ایک قصیدہ کے ساتھ آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس کے عوض میں اس کو 2 شالے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ آزاد نے سحر البیان کے متعلق لکھا ہے: زمانے نے اس کی سحر بیانی میں پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں نے مختصر شہادت لکھایا۔ میر حسن نے مثنوی سحر البیان کی ادبی حیثیت متعین کرنے میں مرزا قتیل کی فارسی تاریخ کا حوالہ دیا۔ میر حسن نے مرزا قتیل فارسی کا، یاد رہے حوالہ جو دیا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے، مرزا قتیل فارسی کے گلزار نسیم کے خلاف سحر البیان میں جزیات نگاری زیادہ ہے۔ گلزار نسیم برخلاف سحر البیان جزیات نگاری زیادہ ہے۔ گلزار نسیم برخلاف سحر البیان میں جزیات نگاری، یاد رکھیے گا، زیادہ ہے، سحر البیان میں اس میں کم ہے۔ سحر البیان کا دیباچہ شیر علی افسوس نے لکھا ہے۔ سحر البیان کا خلاصہ سن لیجئے۔ کسی شہر میں کوئی بادشاہ تھا، ہاں، اسی ہر طرح کا عیش حاصل تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں اس نے دنیا ترک کرنے کی ٹھان لی۔ نجومیوں اور جوتشوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ انہوں نے اس کے یہاں اولاد ہونے کی پیشن گوئی کی اور یہ بھی بتایا کہ بچہ پیدائش کے بعد 12ویں سال آفات و مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ گولر کی جان کی کوئی خطرہ نہیں، مگر پری اور
परी इस पर आशिक होगी। गो लड़के की जान पर कोई खतरा नहीं, मगर कोई परी इस पर आशिक होगी और उसे उड़ा ले जाएगी। नजूमियों की पेशन गोई सही साबित हुई और बादशाह के यहाँ एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। उसका नाम बेनजीर रखा गया। सारे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। सारे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। चौथे वर्ष और दूध छुड़ाकर चौथे चौथे वर्ष दूध छुड़ाकर एक निहायत खुश नुमा बाग में उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया गया। चौथे वर्ष, याद रहे, दूध छुड़ाया गया चौथे वर्ष। किस्मत नजूमियों की कही हुई तारीख या याद ना रही। हाँ, सोए किस्मत नजूमियों की कही हुई तारीख याद ना रही। बादशाह ने इस ख्याल से कि 12 साल बीत गए, शहजादा को महल बुलवा लिया और महल के बाला खाने में रात गुजारने का एहतमाम किया। उसने इत्तफाक से ये रात 12वीं बरस में शामिल थी। चुनांचे नजूमियों के कहने के मुताबिक माहरुख नामी परी का उधर से गुजर हुआ। शहजादा को देखकर उस पर आशिक हो गई और उसे उड़ाकर परिस्तान ले गई। महल में शहजादा के जाने से कोहराम मच गया। इधर मारूफ परी ने शहजादे के आराम व आशाइश और उसके दिल बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शहजादा किसी तौर पर उससे मानूस ना हो सका। आखिरकार मारूफ परी ने शहजादा पर तरस खाकर उसे गुल या कल का घोड़ा दिया और सिरो सयाह के लिए इजाजत दे दी। शहजादा उस कल के घोड़े को पर सवार होकर सुबह शाम तफरीह के लिए निकल जाया करता। एक दिन इत्तफाक से शहजादे का गुजार शहजादी बद्र मुनीर के महल के करीब से हुआ। शहजादा उसके बाग में उतर पड़ा, जहां बद्र मुनीर भी मौजूद थी। बेनजीर और बद्र मुनीर दोनों एक दूसरों को देखकर एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए और मारूफ परी के गयाब में वापस आने में मिलने जुलने लगे। और जब मारूफ को उस मुलाकातों की खबर एक देव के जरिए हुई तो वो बहुत बरहम हुई। उसने मारे गुस्से के शहजादे बेनजीर को कोहे काफ के रास्ते में पड़ने वाले कुआं शाह आलम, जिसका नाम था, कुएं में कैद कर दिया। शहजादे के हाल से बेखबर बद्र मुनीर उसके फिराक में बेचैन रहने लगी। सोते जागते उसे शहजादे की सोहबतों का ख्याल रहता। इसी दौरान उसने एक रात ख्वाब में देखा कि शहजादा एक कुएं में कैद है। वह सख्त बेकरार हो गई। उसने अपना ख्वाब अपनी सहेली वजीर जादी नजमुन्निसा को सुनाया। नजमुन्निसा को बद्र मुनीर पर रहम आ गया और वह जोगन बनकर बेनजीर की तलाश में निकल खड़ी हुई। रास्ते में जिनों के बादशाह के बेटे फिरोज शाह से मुलाकात हुई। फिरोज शाह नजमुन्निसा के हुस्न पर फरेफ्ता हो गया, लेकिन नजमुन्निसा ने सिर्फ इस शर्त के साथ उसने मिलने का वादा किया कि वह शहजादा बेनजीर को ढूंढ निकालने में उसकी मदद करे। फिरोज शाह ने जिनों को बुलाकर बेनजीर को खोज पर मामूर कराया। एक सिकंदर निजाद देव ने कुएं से बेनजीर को निकाला और इस तरह फिरोज शाह की मदद से माहरूफ परी की कैद से बेनजीर आजाद हो गया। फिरोज शाह और नजमुन्निसा दोनों बेनजीर को लेकर बद्र मुनीर के महल में आई और बद्र मुनीर का बाप मसूद शाह को बेनजीर की शादी का पैगाम दिया। बद्र मुनीर और बेनजीर की शादी हो गई। चौथी के दिन नजमुन्निसा और फिरोज शाह की भी शादी हो गई। शहजादा बेनजीर बद्र मुनीर को लेकर अपने मुल्क वापस हुआ और नजमुन्निसा फिरोज शाह के साथ परिस्तान चली गई।
मसनवी गुलजार नसीम का भी इसी के साथ साथ खुलासा कर पढ़ लेते हैं। इसके मसनवी गुलजार नसीम का किस्सा इस तरह है। यूरोप में एक शहंशाह था जिसका नाम ज़ैनुल मलिक था। वह ज़ीहो जां, साहब कुरो फर और दौलत वहशत का मालिक था। उसके 4 लड़के थे जो फहम और फरास्त और हिकमत में यकजाए जमाना थे। उसमें से सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम ताजुल मलिक था, उसके मुतालिक नजूमियों ने पेशन गोई की थी कि उस पर बादशाह की नजर पड़ती ही वो बीनाई से महरूम हो जाएगा। उसने इत्तफाक से एक दिन बादशाह शिकार गाह में आया और अचानक ही उसकी नजरें उस हसीन नौजवान पर पड़ गई। उसके साथ ही बादशाह की बीनाई जाती रही। इस वाक़ये से भाइयों ने उस शहजादे को शहर बद्र मुनीर लेकर हकीमों ने बताया कि बीनाई के लिए बकावली का फूल लाना होगा। शहजादे ने उस फूल की तलाश में निकलते हैं। भला लगाने पर मालूम होता है बकावली का फूल बागे रम के हौज के पास में है। शहजादा ताजुल मलिक बागे रम पहुंचकर बकावली का फूल ले आता है, जिससे बादशाह दोबारा बीनाई आ जाता है। बादशाह की बीनाई दोबारा आ जाता है। बकावली में इस किस्से में जो अहम किरदार है, ज़ैनुल मलिक है, यूरोप का बादशाह था। ताजुल मलिक जो शहजादा है ज़ैनुल मलिक का, जो सबसे छोटा बेटा है। बकावली जो हीरोइन है और ज़ैनुल मलिक ताजुल मलिक का मुलाकात के वक्त फर्रुख नामी वजीर की बेटी से शादी करता है। जमीला परी बकावली की माँ है। फिरोज बकावली का बाग है। सुमन परी बकावली की सहेली है। बहराम जो कि ताजुल मलिक का वजीर ज़ादा है। रूह अफजा जिस पर बहराम आशिक है। हुस्न आरा रूह अफजा की माँ है। महमूदा हम्माला देवानी की माँ बोली बेटी है। राजा इंद्र जिसकी दुआ से बकावली निस्फ पत्थर हो गई थी, जिसके दरबार की रक्कासा पुकार ली गई थी। हम्माला देवानी जिसकी मदद से शहजादा ताजुल मलिक को जंगल को गुलशन बनाया था। देगर किरदार रानी पत्रावत, चित्रात सीन, दिलबर बेसवा वगैरह भी अहम है। अगर हम मसनवी सहरुल बयान की किरदार के मुतालिक बात करें तो मसनवी सहरुल बयान में जो अहम किरदार है उसमें है, मसनवी बहुत से किरदारों में मगर इसमें 6 किरदार बहुत अहम है। शहजादा बेनजीर, मलिक शाह का लड़का और इस किस्से का हीरो है। शहजादी बद्र मुनीर इस किस्से की हीरोइन है। सहरुल बयान की शहजादी बद्र मुनीर इस किस्से की हीरो है। अदब का भी ज़ौक़ रखती है, शेर व अदब का भी ज़ौक़ रखती है। वजीर ज़ादी नजमुन निसा बद्र मुनीर की सहेली है, जो एक ज़हीन औरत है। हर मुश्किल में तदाबीर पेश करती है। नजमुन निसा का किरदार तमाम किरदार में ज़्यादा फ़आल और खानदार और दिलकश है। माहरुख परी जो शहजादे पर बेनज़ीर के इश्क में गिरफ्तार रहती है और वही शहजादी को कुएं में कैद करती है। फिरोज शाह जो बादशाहों के जमाने का बेटा है और उस वक्त नजमुन निसा पर आशिक हो जाता है जब वह जोगन के भेष में बेनज़ीर की तलाश में निकलती है। मसूद शाह बद्र मुनीर का बाप है। बद्र मुनीर मीर हसन के मुतालिक, उसके कारनामे के मुतालिक बात करें तो उनकी मसनवी कितनी मसनवियाँ सहरुल बयान 12 मसनवियाँ मीर हसन ने लिखी, जिसमें से मुख्तसर कुछ का नाम बताते हैं। नकल कलावंत, नकल जन फाहिशा, हिजो कसाई, नकल कसाई, मसनवी शादी आसिफुद्दौला, मसनवी रुमूजुल आरिफीन, मसनवी हिजो हवेली, मसनवी गुलजार नसीब, मसनवी दर तहनीयत ईद, मसनवी दर वस्फ कशफ जौहर,
مثنوی در خانه